Hello everyone. Today I am going to explain you about the statement of profit and loss. So according to the Companies Act 2013, Schedule 3, Part 2, that statement of profit and loss is given. You can see over here that name of the company. First of all, we have to start with the name of the company. Then profit and loss statement of the year ended. So be careful. Final account of partnership is different than the final account of the company. So here profit and loss statement for the year ended, and then afterwards date have to be mentioned. Then afterwards you can see the headings. First heading is the particulars, then note number, it is the number of second, then figure of current account years, that is number 3, and figure of previous years, so that is of number 4. So you have to be careful. 1, number 2 is the second number, 3 and 4. You have to be put number also. Then afterwards revenue from operations, so that is called the sales. First of all, number 1 we have to place it as a sales. Then number 2 is other income, means all the other incomes are mentioned over here. Then we have to make the total of 1 and 2. Total of 1 and 2, it is of the 3, total of the 3, and we have to place it in this box. Then number 4 is of all the expenses. Expenses are recorded over here. Which type of expenses that have to be? First is cost of material consumed, purchase of stock in trade, change in inventories of working process, finished goods and stock in trade, employee benefit expense, finance cost, depreciation and amortization expense, and other expenses. Means all the expenses related to the goods and other expenses are also recorded over here. Then we have to make the total of all the expenses, that is total of all the expenses. Number 5, profit before expectations and extraordinary items and taxes, that is 3 minus 4, तो हमें मिल जाएगा 5. ओके, सो 3 minus 4 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा. 3 के अंदर क्या है, दैट इज़ ऑल द इनकम. सेल्स करते हैं तो उसमें से इनकम आते हैं, और अदर इनकम्स दैट इज़ नंबर 3. एंड एक्सपेंसेस जो है वो नंबर 4 में है, तो इनकम में से एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर 5. दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इट. देन नंबर 6 इज एक्सपेक्टेशनल आइटम्स. एक्सेप्शनल आइटम मीन्स जो भी एक्सक्लूड हो गए हैं, दैट ऑल आर रिकॉर्डेड एक्सेप्शनल आइटम्स, जो हम डिटेल में पीछे देखेंगे. देन प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस मीन्स 5 minus 6 करेंगे तो वी हैव गॉट दिस प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. देन बी केयरफुल, यहाँ पर नंबर अच्छे से रखने पड़ेंगे. देन नेक्स्ट इज 7 नंबर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स and 7 number profit before extraordinary items, 8 number extraordinary items, and 9 number profit before tax. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 9 जो है वो 7 minus 8 करेंगे तो 9 मिलेगा. एंड टैक्स एक्सपेंसेस, दैट इज करंट टैक्स एंड
deferred tax. Two types tax are there. Then 11 number, profit and loss, profit or a loss for the period for continuing operation. 12 number, profit or a loss from discontinuing operation. Tax expense of discontinuing operation, profit or a loss for discontinuing operation, and profit or a loss for the period, that is 11 minus 16. So that is 11 minus 14. So we have got 15 number items, that is according to the schedule. तो इतना सारा हमें एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट. देन जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. फाइनेंस एक्सपेंस दिए गए हैं, फाइनेंस एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, अदर, बोरोइंग कॉस्ट, एप्लीकेबल नेट और गेन or a loss on foreign currency transactions. Other income. Other income includes the interest income, dividend income, net gain or a loss on the sale of investments, other non-operating income. So that all are included in the other income. Employee benefit expense. Employees को क्या क्या benefit मिलता है? जो employees को benefit मिलता है तो ओनर को वो एक्सपेंस है. ओके, सो दैट इज सैलरी एंड वेजेस. कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड मीन्स प्रोविडेंट फंड का हिस्सा जितना एम्प्लॉय का होता है उतना हमें भी देना पड़ता है एज अ कंपनी ओनर. एक्सपेंस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस. देन फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट के अंदर हमने अलग अलग फाइनेंस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है. सो इंटरेस्ट पेड और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन लिए हैं तो उसको पेड करना पड़ेगा इंटरेस्ट उसके ऊपर. डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. बॉन्ड्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, दैट ऑल कॉस्ट वी हैव टू बेयर. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस मीन्स रिनोवेट करना है लीज असेट्स जो होते हैं उसको, सो दैट फिक्स्ड असेट्स के ऊपर और लीज होल्ड है उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, फिक्टिशियस असेट्स जो होते हैं. सो दैट ऑल. फिर डेवलपमेंट एक्सपेंस जो होता है वो एक बार होता है. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक बार होता है. डिबेंचर डिस्काउंट वंस वी हैव टू मेक, पर उसके बाद उसका बेनिफिट सालों साल मिलता है तो इसीलिए वंस वी हैव टू मेक द एक्सपेंस एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू डिडक्ट इट. देन अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड्स द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ऑडिट फी, बैड डेट, provision for bad debt, current year, loss on sale of assets, bank charges, commission, etc. So that all are called other expenses. तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से other expenses आते हैं. अब मेन थिंग आपको यहाँ पर ये याद रखना है, बैलेंस शीट जो आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में आने वाली है वो बैलेंस शीट. ओके, तो यहाँ पर बोर्ड की एग्ज़ाम में जो आने वाली बैलेंस शीट है दैट इज़ ऑफ बैलेंस शीट, नेम ऑफ द कंपनी एट द टॉप, बैलेंस शीट एज ऑन नहीं लिखना है. हमारा पार्टनरशिप जब होता था तब हम एज ऑन लिखते थे, यहाँ पर एज एट लिखना है. देन पर्टिकुलर नोट नंबर एज एट और अमाउंट. देन इक्विटी लायबिलिटी. इक्विटी लायबिलिटीज़ के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, non current liabilities, current liabilities that earlier we have completed,
फिर ये जो लायबिलिटीज़ है, इक्विटी लायबिलिटीज़, ये सबका टोटल करना है. सो हियर इट इज़ नंबर, हैव पुट प्लेस द नंबर. शेयर कैपिटल को नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस को नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ 4, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 5, करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 6, ट्रेड पेएबल 7, अदर करंट लायबिलिटीज 8 एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 9. ये सब का टोटल किया जाता है. तो वन साइड हैव क्लियर्ड, देन द अदर साइड, सेकेंड साइड, दैट आर कॉल्ड द असेट्स. असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, एंड इट इज़ इंक्लूड द टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मीन्स लंबे समय तक 5 ईयर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने दिए हैं किसी को. अदर नॉन करंट असेट्स. तो ये है नंबर 10, 11, 12, 13, 14. देन आफ्टरवर्ड्स करंट असेट्स. करंट असेट्स इंक्लूड्स करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज मीन्स स्टॉक ऑन हैंड, ट्रेड रिसीवेबल्स बिल्स रिसीवेबल कहलाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि डेटर्स, देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स. सो दैट ऑल आर 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो ये सब का टोटल किया जाता है एंड दैट हैव टू बी प्लेस्ड ओवर हियर. तो हमने देखा कि यहाँ पर लायबिलिटीज़ का टोटल और असेट का टोटल दोनों सेम होने चाहिए. ओके, बोथ आइटम्स, बोथ साइड्स हैव टू बी सेम. तो यहाँ पर वर्टिकली ये बैलेंस शीट दिया गया है. देन व्हाट इंक्लूड्स इन दिस, वो यहाँ पर दिया गया है जो हमने अर्लियर ऑल्सो वी हैव लर्न अबाउट. हमने आगे भी देखा था. शेयर कैपिटल इंक्लूड्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, then subscribed and fully paid up share that are included, subscribed but not fully paid up shares that are also included, and forfeited share amount. तो ये सब जो है वो हमें रेडीमेड कैलकुलेट करके दिया गया होगा, पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इट इज़ गिवन ओवर हियर कि आपको पता चले कि इक्विटी शेयर से रुपीज़ को मल्टीप्लाई करके अमाउंट प्लेस करनी है. देन रेवेन्यू एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या क्या इंक्लूड है ये जस्ट आपको याद रखना है. सो जनरल रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड, और ये जो सरप्लस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में से आया हुआ सरप्लस है. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस पहले बनाते हैं, उसमें से सरप्लस लेकर ये बैलेंस शीट के अंदर प्लेस करते हैं. देन आफ्टरवर्ड्स सारे रिजर्व्स और फंड्स यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं. देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू मेक द टोटल ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मीन्स बाहर से हमने बोरो किया है, बिजनेस में लाए हैं, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब भी यहाँ पर प्लेस होगा. देन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ that are includes premium on redemption of debenture. redemption means वापस देने हैं, डिबेंचर होल्डर के पास से जो हमने पैसे लिए हैं उसको वापस देने हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड द redemption. तो प्रीमियम ऑन redemption of debenture, डिबेंचर के पैसे के साथ उसके ऊपर प्रीमियम भी देना पड़ता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ₹. देन प्रीमियम ऑन डिबेंचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. तो अगर प्रेफरेंस शेयर वापस देने हैं तो उसके अमाउंट के. long term provisions that are also includes all the funds, provident fund, gratuity fund, pension fund, workers profit sharing fund, workers savings account, that all are included in the long term provisions. means लंबे समय तक कंपनी के पास रहते हैं जिम्मेदारियां. जब
एम्प्लॉय बिजनेस में से निकलता है तब इसको वापस देना पड़ता है, तो इसीलिए ये जिम्मेदारी है। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मीन्स लेस देन 12 मंथ्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। ट्रेड पेएबल के अंदर आते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दैट आर ऑल्सो प्लेस्ड। अदर करंट लायबिलिटीज, दूसरी जो करंट लायबिलिटीज है दैट आर इंक्लूडेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिबेंचर ऑन एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पेएबल ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो ये भी याद रखना है। व्हाट आर इंक्लूडेड ओवर हियर? कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस that includes the provision for tax and proposed dividend. So that all are included and make the grand total of all. So that all are liabilities, equity and liabilities. ये सब का टोटल किया जाता है। फिर आते हैं assets. Assets includes the tangible assets, land, building, plant, machinery, furniture, fixture, vehicle, tools, equipments means संसाधन, लीज होल्ड एसेट्स मीन्स लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं 10 साल के लिए हमने भाड़े पर लिए हैं, वैसे लीज। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल वो हो गए। अब इंटेंजिबल के अंदर आते हैं। इंटेंजिबल मीन्स विच वे कैन नॉट टच, तो इट इंक्लूड्स द गुडविल मीन्स रेपुटेशन, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइज, दैट ऑल आर हैविंग द वैल्यूज़। ये सब की वैल्यू होती है, तो ये भी इंक्लूड किया जाता है असेट्स के अंदर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स 12 मंथ्स से ज़्यादा है कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस ने, सो दैट आर इंक्लूडेड। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो 12 मंथ से ज़्यादा अगर हमने कहीं पर एडवांस दिया है या फिर लोन दिए हैं, दैट इंक्लूड्स द लोन टू एम्प्लॉयज़, कस्टम डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। तो ये जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड जब तक बिजनेस चलेगा वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट मीन्स हमने मीटर लिया होगा, तो मीटर के लेने से पहले हमें डिपॉजिट के तौर पर मीटर के अमाउंट रखने पड़ते हैं। टेलीफोन लेते हैं तो टेलीफोन की अमाउंट डिपॉजिट के तौर पर पहले रखनी पड़ती है, जब हम डिस्कनेक्ट करते हैं तब ये रिफंड मिलती है। सो दैट इज़ फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अदर नॉन करंट असेट्स मीन्स लेस देन 12 मंथ्स, दैट इंक्लूड्स अ डिबेंचर डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। मीन्स ये जो है उसका एक ही बार करते हैं पर हमें उसका नेक्स्ट ईयर भी उसका फ़ायदा मिलता है, सो दैट आर वी कैन राइट इट ऑफ। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इट इंक्लूड्स द शॉर्ट टर्म मीन्स 1 ईयर तक की जो भी इन्वेस्टमेंट है वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनी, हमारी कंपनी ने कहीं और दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इन सब में इन्वेस्टमेंट किया है। देन इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक, हमारे पास स्टॉक कितना है लास्ट में बचा कुचा। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड मीन्स बेचने लायक चीज़ें। लूज टूल्स इंक्लूड्स जो भी पाना, पकड़, weight machine and all that are included in under one heading, that is loose tools. Spare parts, consumable stores and goods in transit. तो transit means जो भी अभी यहाँ से तो निकला है, हमारी कंपनी में से निकला है पर सामने पहुँचा नहीं है, तो that is called goods in transit. That tradable receivables, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर इंक्लूड है डेटर्स मीन्स डेटर हमें सामान हमने सेल किया है और उसके पैसे फ्यूचर में आने वाले हैं, सो दैट डेटर्स हैव इंक्लूड।
बिल्स रिसीवेबल मीन्स उसने बिल एक्सेप्ट किया है डेटर ने और वो हमें फ्यूचर में पैसे देने वाले हैं. सो दैट आर ऑल्सो इंक्लूड इन द असेट्स. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, चेक और ड्राफ्ट जो हम फ्यूचर में, फ्यूचर डेट है तो उसके अंदर हम फ्यूचर में पैसे मिलेंगे. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. शॉर्ट टर्म मीन्स 12 मंथ्स के अंदर की जो भी एडवांसेस जो है हमने कहीं पर दिए हैं वो. एडवांस टू सप्लायर, हमने सप्लायर को एडवांस दिया है वो. ऑर्डर देते हैं तब एडवांस में थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है. सो दैट अदर करंट असेट्स इट इंक्लूड्स द प्रीपेड एक्सपेंसेस. एडवांस में पे कर लिया, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे करना पड़ता है. दैट सैलरी एडवांस में पे कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द असेट्स. इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होता है वो भी हमारी असेट्स है. एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंस. एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंस राइट ऑफ ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 मंथ्स मीन्स इस ईयर में हमने एडवर्टाइजमेंट किया है पर उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा हमें, तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है. एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंस में से हाफ कर देते हैं. हाफ ईयर इस हाफ एक्सपेंस इस ईयर में, हाफ ईयर एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो एक्सपेंस करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही बार करते हैं तो उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर भी मिलता है. डिबेंचर डिस्काउंट टू बी राइट ऑफ. डिबेंचर का डिस्काउंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस ऑफ द written off during next 12 months. So that are other current assets. तो ये सब का टोटल किया जाता है और टोटल जो है वो असेट्स और लायबिलिटीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ दोनों का इक्वल ही होना चाहिए. सो दैट इज़ द फाइनल रिजल्ट वी कैन गेट. देन आफ्टरवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया गया है. वी हैव टू फॉलो दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Statement of profit and loss. Number 1, it is given revenue, that is sales, other income, total revenue, expense, purchase, change in stock, direct expense, employee benefit, finance cost जो हमने आगे पढ़ा था कौन कौन इंक्लूड करते हैं. ओके, दैट आर इंक्लूडेड. देन डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस किया जाता है. और 5 नंबर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट आर इंक्लूडेड ओवर हियर, वो हमें अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगी. मीन्स इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो वी कैन गेट द अमाउंट. फिर वी कैन गेट द 5 नंबर. देन 6 नंबर प्रोविज़न फॉर टैक्स. टैक्स दिया गया होगा परसेंटेज. देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स डिडक्ट करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इतना ही आपको बोर्ड की एग्जाम में आएगा. सो दैट प्रॉफिट एंड लॉस इज फाइनल. वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस टाइप का ही आएगा. और बैलेंस शीट जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है. व्हाट आर इंक्लूडेड ओवर हियर दैट नेक्स्ट सेशन में हम आगे देखेंगे. टिल दैट थैंक यू.